ناظرین ہمارے ساتھ مقتول ایاز احمد کی بہن موجود ہیں جو کہ مدعی مقدمہ بھی ہے. ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ کیسے ہو سکتے ہیں کہ ہمارا کیا حال ہے؟ ہمارے بھائی کے ساتھ انہوں نے نہیں اچھا کیا. بہت افسوس ہے ہمیں آپ کے بھائی کا، اور ہماری تمام ہمدردی آپ کے ساتھ ہیں. اس لیے ہماری ٹیم جو ہے وہ اتنی دور سے آپ کے پاس آئی ہے. ہم ظاہری بات ہے ہم ازالہ تو نہیں کر سکتے ہیں، لیکن انصاف دلوانے کی پوری کوشش کر سکتے ہیں. چلیں آپ کا میں کیا کہہ سکتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے لیے جزائے خیر عطا کرے، اور جو ہمارا ساتھ دے گا، بلکہ ہمارا کیا ساتھ دینا ہے، حق کا ساتھ دینا ہے. میرا بھائی ہے ہی بہت اچھا، بڑے گھروں کا آسرا تھا، مطلب کہ وہ ایسی نیکی کرتا تھا کہ کبھی کسی کو بتایا نہیں کہ میں فلاں کے ساتھ یہ نیکی کر رہا ہوں. تو میرے بھائی کے ساتھ بہت ہی برا ہوا کہ میں جو لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی، اپنے دل کی کیفیت نہیں بتا سکتی کہ ہمارے ساتھ کیا گزرا ہے. میرے ابو جی کے ساتھ، میری امی، میرا بھائی، اب ایک ہی میرا بھائی رہ گیا. میری بہن پردیس میں ہے، وہ وہاں پہ اکیلی ہے. اس کا تو دیکھا ہی نہیں جا رہا کہ وہ اس کو کون تسلی دے وہاں پہ. بالکل ہم آپ کا جو ہے وہ غم جو ہے وہ سمجھ سکتے ہیں. ایک آسان نہیں ہوتا بہن کے لیے بھائی کو اس حالت میں دیکھنا. تو مجھے آپ بتائیں گی کہ یہ جو رشتہ ہے یہ کس طرح سے ہوا تھا؟ آپ کی برادری ہے یا کیا سین رہا ہے؟ یہ ہماری اپنی برادری ہے، مطلب کہ جیسے دو دادوں کی اولادیں ہوں، ایک میں سے وہ ہیں اور دوسرے میں سے ہم ہیں. اور یہ رشتہ ہم نے 3 سال اس کے جو ان سے ملزم عدیل ہیں ان سے پوچھتے رہے ہیں. ابھی میں 1 مہینے میں بتاتا ہوں، 2 مہینے میں آنا، پیسے لے کے جانا. ہم نے بھی بڑی رسپیکٹ کرنی کہ چلو جی کہ ہمارے ساتھ یہ تعاون کرے گا، اور ہمارے ساتھ صحیح رہا ہے. میں مان گیا ہوں، فلاں نہیں مانتا، میں یہ ایسے فلاں نہیں کرتا. پھر ایسے ہی انہوں نے کر آ کے نا پھر نکاح بھی پڑھوایا اس کے والد صاحب نے. اور بعد میں کہتے ہیں کہ جی میرے نام، پھر بعد کہتے ہیں کہ میرا ذکر نہیں آئے، میں اپنے بچوں کو ایگری کر کے نا تو پھر صحیح کر دوں گا. تو یہ ایاز کی پہلی شادی تھی؟ نہیں، میرے بھائی کی یہ دوسری شادی تھی. پہلی شادی ان کی نا مالی پور ساتھ ہی ہمارا گاؤں ہے، وہ بھی ہم نے خود ہی اپنے بھائی کی شادی کی تھی. تو پہلی شادی کے دوران آپ ان سے رشتہ کیوں مانگ رہے تھے؟ وہ اس لیے کہ ہماری بھابھی جو سی ہے نا، ہمارے بھائی کے ساتھ ان کا اچھا تعلق نہیں تھا، تعاون نہیں تھا، گھر میں نہیں تھی رہتی، تو وہ زیادہ اپنے میکے میں ہی رہنا پسند کرتی تھیں. اور بھائی کی پہلی بیٹی ہوئی تو پھر بھی ان سا ہوتا ہے نا کہ بندہ میاں بیوی کا ریلیشن ہوتا ہے، کال پہ بات، ویڈیو کال پہ بات، مطلب کہ ایسے تھی کہ جیسے وہ زندگی میں کہیں ہے ہی نہیں. بھائی ادھر 3 سال پاکستان رہ کے گئے ہیں شادی کے بعد. میں نہیں کپڑے دھونے ہیں، میں نہیں کھانا پکانا، ایون دس دیٹ سارا کچھ میں ہی تھی. تو پھر بھی میں ان سب کی کرنے کے باوجود بھی یہ کہتے رہتے تھے کہ اب ابھی آپ اپنا گھر بسائیں. باپ ایسے ہوتے ہیں، اتنے خود غرض ہوتے ہیں، اب آپ کی اپنی اولاد کی خوشی نظر نہیں آتی ان کو. والد کیا، انہوں نے مطلب کہ باپ ہونے کے نام پہ یہ دبا ہے، کیونکہ باپ بیٹیوں کے لیے بڑے شفیق، بڑے رحیم ہوتے ہیں، بڑے رحم. بے شک ایسے ہی ہے. ایک تحفظ ساری دنیا سے لڑتے ہیں اپنے بچوں کے لیے. لیکن یہ بہت مطلب کہ شیطان کی بھی کچھ شکل ہوتی ہے، اس سے بھی برتر ہے. یہ اس بھائی کے جو سا یہ میر، اس نے بھائی کو بڑے چال میں، بھائی آپ پاکستان آئے، میں نے سعودیہ چلے جانا ہے تو پھر مجھے ویزا دیں، یہ ہے وہ ہے. پھر میرے پاس گھر آتے رہے ہیں کہ باجی میرا بل آ گیا، مجھے پیسے چاہیے. میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں بھائی، آپ لے جائیں. مطلب ہمارے ساتھ ایسے ہو گیا تھا کہ جیسے ہمارا گھر کا ہی بندہ ہو گیا. تو آپ کو اندازہ نہیں تھا کہ اس طرح سے سوچ رہے ہیں؟ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ ہمارے ساتھ اس طرح کر بھی سکتے ہیں، کیونکہ وہ کون سے ریکارڈ یافتہ ہے، نارملی اسکالرشپ پہ پڑھنے والے بچے، ایک اچھے خاندان کے. مطلب کہ انہوں سمجھ ہی نہیں آئی کہ ان کے اندر اتنی اشتعال انگیزی، اتنا غصہ کہاں سے بھر گیا اور کس بات پہ. میرے بھائی نے کون سا کچھ جرم کیا ہے؟ ان کی بیوہ اور بچی جس کو مطلب کہ اتنا تحفظ، اتنا سارا کچھ، اور یتیم بچے کے سر پہ ایسے ہاتھ رکھا کہ جیسے وہ خود اس کا باپ ہے. اچھا مجھے بتائیں، جب وہ بات کرتا تھا اس کے بھائی سے تو وہ آپ کو بتاتا تھا کہ میری امیر حمزہ سے یا عبیل سے رابطہ ہوا ہے، تو آپ منع نہیں کرتی تھیں؟ ہمیں سب کو بتاتا تھا کہ ایسے میں بھی بھابھی بھی لڑنا، جس دن یہ وقوع ہونا ہے اس سے 1 دن پہلے بھی بھابھی کہہ رہی ہے آپ ان کو باتوں میں نہیں آئے. میں بھی کہہ رہی ہوں بھائی یہ ہمیں پاکستان بتا کے نہیں آئے، امیر کے کہنے پہ آئے ہیں. اچھا یہ امیر کے کہنے پہ ہیں ایاز؟ تو یہ آپ کی بھابھی کو پتہ تھا؟
नहीं, भाभी को नहीं पता। वो इसलिए कि अमीर कहता था कि मैंने चले जाना भाई, तो पीछे मामला सेटअप नहीं होना, तो आप जब आए तो आपके साथ कोई ये मसला ना करें। वो खुद बताता था कि इन्होंने आपको छोड़ना नहीं। तो मैं चाहता हूँ कि मैं आप आएँ, मैं बैठ के बात करके तो सारा मामला क्लियर कर दूँ। भाई हमें, मेरे छोटे भाई को नहीं, मुझे नहीं, मेरी अम्मी अब्बू को नहीं, किसी को नहीं बता के आए, ऐसे ही आए हैं। और इस साथ ही इन्होंने आगे प्लानिंगें करनी शुरू कर दी हैं। ठीक है, उस दिन मुझे बताएं क्या हुआ था, किसके कहने पे वो गांव गए थे? पहले भी गांव जाते हैं ऐसे रूटीन में? नहीं, इस रूटीन में नहीं थे जाते, क्योंकि हम जाने नहीं थे देते, क्योंकि हमारे दिल में खदशा था कि ये ऐसे करेंगे। तो उस दिन जोन से गए हैं 6:06 पे। नॉर्मली मुझे कहते हैं मैं अभी घर आ जाता हूँ, तो अम्मी को नहीं बताना। सुबह के टाइम? ये पिछले टाइम तो गए हैं। तो नॉर्मली जैसे होता है, मैं वेट कर दे रही हूँ, भाई आ जाते हैं, मैं कॉलें करती रही हूँ कि भाई आप किधर हो। मैंने 10:11 पे कॉल किया, भाई किधर है आप? कहता मैं गाँव हूँ। मैं कहा कब आना है? बस में आ गया 15-20 मिनट पे। फिर 10:46 पे मैंने कॉल किया, मैंने कहा भाई अब्बू 11 पे की थी कि अब्बू की मेडिसिन लेने जानी है, तो फिर डॉक्टर बंद हो जाएगा, तो 11 बज जाने हैं। भाई कहते हैं आप बाहर आ जाओ। फिर मैं बाहर गई हूँ, तो ने वेट किया, अब्बू कहते मुझसे नहीं खड़ा होता। फिर मैंने ना ये तैयब को मैंने कहा कि तैयब आओ ना, अब्बू के इधर पास से जाना। तैयब कौन है आपका भाई? ये मेरे चाचाजाद भाई है। तो इसको मैंने कहा कि साथ चलो। फिर अब्बू को मैंने बीच बैठाया, आगे ये था, पीछे हम मेडिसिन लेने चलेंगे। भाई के साथ इस वाक़या मतलब दौरान मेरा राब्ता था। मैं कॉल की, मैंने कहा भाई आप किधर हैं? कहते मैं ना फलां। मैं कहा फिर आप हमारे आगे हुए, हम आपके पीछे। उन्होंने वैसे आपको बताया था कि मैं अमीर हमज़ा से या फिर अदील वगैरह से मेरा मिला हूँ? हाँ, एक दिन पहले मुझे बताया। नहीं, उस दिन बताया आपको जिस दिन आपसे रब्ता कर रही थी आप उनसे? नहीं, उस दिन नहीं, पहले सारा जो भी बातें चैट पे हमारे पास। हमारे भाई ऐसे हैं, हमारे दोस्त हैं। कुछ भाई होते हैं ना बड़े ज़ालिम, ये वो। माशाल्लाह उससे मतलब कि इतना कारोबारी बंदा, लोगों से बात में, बड़ों बंदों में बैठना। दवाई लेने के लिए गए तो फिर आगे हम देख रहे हैं कि बस बड़ा रश, आवाम भाग भूग गई है, गोलियां चल रही हैं। इनको मैंने देखा है कि मेरे भाई के साथ कैसे इन्होंने जुल्म किया है। तो हम नहाते थे। उस टाइम आपने देखा कि सामने आपके भाई के लिए लोग जमा थे? मैंने सारा वाक़या, हर चीज़ मैंने खुद, हम सब देख रहे थे, क्योंकि मेरे पास कुछ नहीं था। हम सामने थे। जाए वो कुआं से कितना दूर थी? चाहे वो कुआं से, जैसे ये हम इधर खड़े हैं, ये बाहर हमारी गली के पास जाना है, इतनी दूर थे। तो हमारे पास तो नहत्ता इंसान हो वो डर ही जाता है। वो क्या, वैसे भी था कि जैसे ये गोलियां बरसा रहे हैं, वो कौन सा बच्चे हैं। तो मैं अपने अब्बू जी को, उनको बचाऊं या अपने इस भाई, ये तो मुझसे संभला नहीं था जा रहा। तो वो मंजर किस तरह से देखा आपने अपने भाई को अपने सामने इस तरह से? ना बता सकती हूँ, ना ही मैं वो, मेरे पास अल्फाज ही नहीं वो मंजर के, मैं कैसे बताऊँ। वो बड़ा, कभी ज़िंदगी में वो तक ये मंजर ना भूल सकते हैं। कब्र में मैं चली जाऊँगी तो नहीं भूल सकती। कैसे इन्होंने दरिंदगी से साथ, ऐसे कि जैसे कोई बहुत बड़ा जुर्मदार बंदा हो। बड़ा। कितने लोग थे उस टाइम वहाँ पे? एक एवरी गाड़ी जो सी कैरी डब्बा नहीं होता वाइट, वो था। 3 बाइक्स थी, तीनों पे 2-2 सवार थे। तो ऐसे ही भाई की गाड़ी आई है। भाई अपनी रूटीन से जो नॉर्मली चल रहे हैं, क्योंकि बात भी हो रही थी कि हम भी आपके पीछे हैं, उसी हिसाब से वो चल रहे थे। अमीर आया, उसने सलाम लिया भाई से, और सलाम, भाई ने शीशा नीचे किया, बड़ा खुश हो के उन्होंने सलाम किया। क्योंकि ऐनी शाहिद भी जो थे, उन्होंने, हम तो दूर थे देख रहे थे, लेकिन ऐनी शाहिद जो थे उन्होंने बताया कि एक बंदा जो आपके भाई को जानता था, उसने उसके लिए बड़ा चेहरे पर मुस्कुराहट ला के दरवाज़ा शीशा नीचे करके सलाम लेने लगा। और जो वो लड़का था, उसने सलाम के ज़रिए यहाँ पे भाई को एक बुलेट किया है। और भाई को जब पता चल गया कि ये मेरे साथ ये करने वाले, भाई माशाल्लाह बड़े जवान थे, हिम्मत वाले, उन्होंने फौरी से गाड़ी तेज़ की है। पहली बार जब सलाम लिया तो उसने फ़ौरन जो है पिस्टल जो है सीने पे रख दी? हाँ, फौरी बुलेट किया भाई को। फिर भाई ना गाड़ी तेज़ कर लिया। दूसरी बाइक पे जो से सवार थे, उन्होंने तेज़ करके, एक ट्रैक पे भाई है, दूसरी ट्रैक पे दूसरी बाइक है, वो साथ में उन्होंने टच करके ना, तो वो भाई की गर्दन को ऐसे पकड़ लिया, और साथ में उसके हैंड में भी पिस्टल है।
وہ भी उसको ना फायर कर रहा है। फिर जाके जब इसने स्टीयरिंग घुमा दिया, सड़क पे ना ईंटों का ढेर है, गाड़ी वहाँ पे जाके रुक गई है। लास्ट जोन सा शकील और अदील, इन्होंने लास्ट, शकील कौन है? ये भी भाई है? ये भी इसका भाई है। जो अदील है वो भी मास्टरमाइंड है, वो सारे केस का करता धरता। उसने लास्ट, जिसको वेरिफिकेशन नहीं कहते कि हाँ भाई ये काम ठीक हो गया, लास्ट उस बगैरत ने बाइक से उतरा है और फ्रंट स्क्रीन पे 2 ऐसे वो जोन से होते हैं, वो बट जोन से मुजर के होते हैं, वो ज़ोर ज़ोर से गाड़ी के बॉटम पे फ्रंट स्क्रीन पे मारे हैं। फिर इसने फायर किए हैं भाई पे। और लास्ट जोन सी मेरी भाई की जोन से लास्ट वाला वक़्त है ना, वो इस बगैरत ने मेरे भाई के साथ ये जुल्म किया और ये फिर सारे मौका से फ़रार हो गए। फिर हमारे साथ जो क़यामत गुजरी, जो हुआ, कुछ समझ नहीं था आ रहा कि हम क्या करें, क्या कहें। बस हमारी दुनिया ही उजड़ गई, हमारे घर का बादशाह गया है। कुछ छोटी बड़ी हमारे साथ जुल्म नहीं हुआ, बहुत बड़ा। और ये एक गली का को कहते हैं ना कि गली के कख भी रोंदे ने। मेरे भाई इतना अच्छा था कि 2-3 दिन बाद ब्लड फौरी जम जाता है। 3 दिन बाद इधर ही भाई को नहलाया था, तो वो सामने ना इधर उन्होंने जोन से चद्दर थी नीचे, जो कपड़े थे भाई के इधर उतारे। तो 3 दिन बाद मुझे ना कहा, ज़ाहिर मेरी कंडीशन ऐसी थी, तो बच्ची कहती है बाजी ये भाई के इधर ब्लड वाले कपड़े पड़े हैं, तो उठाए। मैं और मेरा छोटा भाई ना कपड़े उठाने लगे। आपने कहना है कि शायद इसका भाई है, ये बड़ी तारीफ़ें कर रही हैं। मेरे पास वो मैंने वीडियो भी रिकॉर्ड की है। ब्लड को मैंने ऐसे साफ़ करने लगे, ऐसे जैसे अभी ताज़ा गिरा यहाँ पे। आपको पता है कि ब्लड जम जाता है और नीचे वो अपने निशान छोड़ता है, कहीं वो नहीं जमा। आज भी वो चद्दर मेरे पास है, मैं आपको दिखाऊं तो वो ब्लड ऐसे ही नीचे गिरेगा जैसे अभी का भी है। अपनों की तो तकलीफ़ जो है वो वैसे ही देखी जाती है, चाहे वो छोटी सी तकलीफ़ हो। अपने भाई को ऐसे देखना और दुश्मनों के सामने जो उसको मुसलसल गोलियों से वार कर रहे हैं और इंतज़ार कर रहे हैं उसके मरने का, ये बहुत इस तरह से वाक़या जो शायद कभी भी भूल नहीं सकती हैं आप। मैं कहती थी कि कोई मैदान करबला में वो 72 घंटे कैसे प्यास और भूख से रहे। मुझे अब जब इतनी क़यामत दिल पे गुजरी है ना, तब पता चला है कि जब ये इतने हादसे हो जाए ना, तो इंसान की भूख प्यास बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, इंसान के अल्फाज भी ख़त्म हो जाते हैं, वो खुद उसकी ज़िंदगी का कोई नामो निशान नहीं रहता। हमारे वो तो एक गया ना, हम घर के कितने अफराद हैं, 3 हम बहन, 5 लोगों की वो जैसे कि वो एक ही जान लेके चला गया। हम 5 लाशें पीछे रह गए। मेरे जवान बाप, मेरे अब्बू फेफड़ों के मरीज़ हैं, मेरी अम्मी वो भी मरीज़ ही हैं, मेरा छोटा भाई है वो अब हमें कह रहे हैं, धमकियाँ लगा रहे हैं। ये शकील साहब कह रहे हैं, जो मुल्ज़म है, वो कहता है अभी तो शुरुआत हुई है। इसके भाई को, मुझे, मेरी भाभी को, मेरे छोटे भतीजे को मार के चले जाएंगे तो फिर पीछे कौन रह जाएगा? फिर केस तो ख़त्म हो जाएगा, बंद हो जाएगा, हम छूट जाएंगे। और मुतालबा करना चाहती हैं आप हुकूमत वाला से? मैं हुकूमत वाला से ये मुतालबा करना चाहती हूँ कि हमें इंसाफ चाहिए, मेरी अम्मी अब्बू को, हमें, कि हमारे साथ इतना बड़ा जुल्म क्यों हुआ है। और ऐसे अगर ये इन्होंने ऐसे किया तो ऐसे देखा था कि और लोग भी लोगों के साथ जुल्म करेंगे। इस चीज़ को रोकना चाहिए, जो इसको पकड़ें और इबरत के लिए चौंक में लटकाएं कि नेक्स्ट टाइम कोई किसी के साथ इतना बड़ा जुल्म ना करे। और किस लिए इन्होंने इतना बड़ा जुल्म किया है? इनकी बहन ने इनका बिगाड़ा क्या था? इनके घर में आके इनके लिए खाने पकाती थी, अपने पैसों से इनका ख्याल रखती थी, ये जुल्म था उसका।